Hello everyone, welcome back to Duels, the hub of mechanical engineering. So in this video we are going to talk about uh, the syllabus of OJE and the subject we are going to start is mechanics, right? So today's video we will just talk about the introduction of the mechanics. Afterwards we will move forward, right? So let's see what is mechanics first. So if you are, as the name is mentioned over here, that engineering mechanics is, so first you have to learn about what is the mechanics. And mechanics, if I will tell in simple words, my dear, then it is nothing. It is just the study of a body which is under the application of a force, and the body must be a rigid body, right? So here is the thing. Actually, what is rigid body is? Just a minute. Okay, so here I have mentioned everything for you guys to note it down, but let me explain you first. Afterwards, I will say you that which one is important and what are the things you have to write, right? So, what is mechanics actually? It's a branch of physics which deals with the behavior of a body under the application of force. And कौन सा टाइप का बॉडी होगा वो इट इज ए रिजिड बॉडी सो you might have a question in your mind that what is rigid body, right? So beta rigid body means the body which having zero deformation under the application of load, right? In the sense, what does it mean? Now if we will apply the load on the body, then what will happen? It will not deform at all. Deform means what? Deform means the change of shape and size. कोई भी एक बॉडी है, आपने फोर्स अप्लाई किया एंड उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब ना शेप शेप चेंज हो रहा है ना साइज चेंज हो रहा है, तो दैट काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. बट आपको क्या लगता है ये एग्जिस्ट करेगा नॉर्मल हमारा रियल लाइफ वर्ल्ड में? एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर आवर इजी कैलकुलेशन और सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए ही हम रिजिड बॉडी को एज्यूम किए हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट? हम कोई भी एक बॉडी को रिजिड बॉडी समझ कर ही उसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कि उसको स्टडी करेंगे, ठीक है? एंड जो हमारा ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पढ़ने का तरीका होगा एंड हाउ इट विल बी, इट विल it is the on the basis of two types mainly. First is kinematic and second is dynamics, and these are the very important terms. I can say you that because most of the times people will ask you this question to make you confused, right? So just have your attention on it and you will understand it in a very good way, right? So kinematics मतलब क्या होगा एंड डायनामिक्स में क्या होगा ना? काइनेमेटिक्स में हम बस एक ही चीज करेंगे ना, हम बस मोशन को ही कंसिडर करेंगे, उसका फोर्स को छोड़ेंगे. जो भी फोर्स और जिसकी वजह से मोशन हो रहा है वो वजह को हम मतलब जो कारण है इसके पीछे का कॉज है उसे छोड़ देंगे, इन द सेंस फोर्स को छोड़ देंगे, बस मोशन को कंसिडर करेंगे. तो आई हैव रिटन एज आई हैव टोल्ड यू दैट ओनली मोशन विल बी कंसिडर्ड विदाउट फोर्स. फोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली मोशन विल बी कंसिडर्ड. एंड डायनामिक्स क्या होगा ना? डायनामिक्स में दोनों मोशन तो कंसिडर होगा ही होगा, क्योंकि और नहीं तो क्या करने वाला है मैकेनिक्स में, हम हर मोशन को हम एनालाइज करने वाले हैं यहाँ पर. एंड अलोंग विद दैट फोर्स को भी एनालाइज करेंगे, कितना फोर्स के वजह से ये सब हो रहा है, कितना फोर्स का एप्लीकेशन हुआ था और फोर्स कैलकुलेशन, बहुत सारा चीजें होगा. एंड वी विल लुक वन बाय वन, right? So these are the two step of mechanics, and before that you have a little bit idea of physics. Why? Because I have told you ये science and science ये physics लिखना चाहिए था मुझे, but फिर भी it's okay, right? Physics is also part of science, no, right? So फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा ही नहीं. हम धीरे धीरे जो भी नहीं है वो आराम से सीखने चलेंगे. एंड यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अगर उसको डेफिनेशन कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल. विच कैन बी मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सकता है, मेजर जो हो सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है. एंड आपको ये पता ही होगा फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स होते हैं.
ये मैकेनिक्स है इसलिए टू टाइप्स, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तब मैं थ्री टाइप बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए टू टाइप्स ही समझना अच्छा है। पहला वाला है बेटा स्केलर एंड दूसरा है वेक्टर, राइट। तो स्केलर केस में क्या होता है ना, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। मैग्नीट्यूड मतलब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि मान लो कि मैं दुकान में गया एंड आई जस्ट आस्क्ड द शॉपकीपर दैट गिव मी सम शुगर एंड आई विल ask him that give me 2 kg of sugar। तो here the two number 2 is magnitude। जैसे कि कोई फोर्स है, कितना फोर्स भाई 10 न्यूटन, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड। जैसे कि और क्या बोलूं, लेंथ है, लेंथ में बोला कि इसका लेंथ है 5 मीटर, तो 5 इज द मैग्नीट्यूड हियर, राइट। एंड यहाँ पर वेक्टर में क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होगा ना, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी कंसिडर होगा, और क्या होगा ना, वो जो क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर बोलने वाले हैं दैट मस्ट बी फॉलो वेक्टर लॉ। and it is very important, most of the people forget this one and I want you guys to remember it because this is very important, क्योंकि मैं एग्जांपल भी देने वाला हूं एंड आपको समझ में आएगा। एंड स्केलर में क्वांटिटी कौन सा होगा, एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि हम, जैसे स्टार्टिंग से ही हमको पता है डिस्टेंस भाई स्केलर है, और उसका रिलेटेड स्पीड स्केलर है, उसका रिलेटेड और क्या mass is a scalar and temperature also is a scalar, right। एंड अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर में क्या होगा, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी भी हो जाएगा, वेलोसिटी आल्सो इज ए वेक्टर एंड विस्कोसिटी भी हो जाएगा। जो कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है एंड ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है, वो हो जाएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉलो वेक्टर लॉ। आप बोलेंगे सर ये कैसे, मतलब फॉलो वेक्टर लॉ को फॉलो करना जरूरी है, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ है ना, जैसे कि हमारा करंट के बारे में हम बात करते हैं, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, यू नो दैट, ओके। करंट क्या होता है ना, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को, लो वोल्टेज की तरह ही मूव करेगा। मतलब डायरेक्शन हमें पता चल गया कि हमेशा हाई से लो तक ही जाएगा। फिर भी एंड उसका मैग्नीट्यूड ही ऑब्वियसली है, हम 10 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर भी करंट को हम नहीं बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई, बिकॉज इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ, राइट। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर लॉ इज। क्वांटिटी हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको व्हाट इज दिस वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, राइट। बट ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर लॉ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो पता चल ही गया, वेक्टर लॉ क्या है, दिस इज द आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई recommend you guys that don't forget to watch the next class, and it is very important and it is the basic. If you will don't know, then there are, and I'm going to here I'm going to practice here some previous year question also, so you guys must attend the or must visit the second class, and it is very important for you. Till then, take care, bye.